السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی عبد القادر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو صاحب ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ اگر فجر کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، جی اور ایک رکعت ہم نے پڑھ لی ہے اور سورج طلوع ہونے لگا ہے، جی تو ہم کو نماز مکمل کرنا چاہیے؟ نماز ہو نہیں، جائے گی؟ نہیں ہونے گی، اور اگر وہی بس سلام ہے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہو جائے گی۔ عصر کی اگر ایک رکعت پڑھی باقی سورج غروب ہونے لگا تو ہاں تین تو رکعت وہ؟ وہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی کوئی حدیث، کوئی دلیل ہے شیخ؟ مسائل تو لکھے علماء نے ایسے، نہیں، جو علماء نے حدیث مسئلہ تو لکھا ہے وہی لکھا۔ بخاری کی جو روایت ہے، حدیث نمبر 556، اس میں یہ ہے اللہ کے رسول نے فجر کا اور عصر کا دونوں نمازوں کا ذکر کیا ہے، ہوں، اور فرمایا ہے کہ اگر بندہ اس وقت میں عصر کی نماز پڑھے کہ ایک رکعت اس نے پڑھی ہے اور سورج غروب ہونے لگا تو وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ ہوں، اسی طریقے سے اگر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک رکعت پڑھی ہے اور سورج طلوع ہونے لگا ہے تو وہ بھی اپنی نماز مکمل کر لے، نماز مکمل کر لے، نماز ہو جائے گی۔ تو حدیث مجھے بھیجو آپ، میں دیکھوں کیا ہے۔ حدیث 556 ہے، ایک سیکنڈ آپ آن لائن ہی رہیے گا، میں انشاءاللہ دیتا ہوں آپ کو۔ جی جی بھیج دو۔ ہاں، السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھ لی حدیث؟ ہاں دیکھ لی، میں بعد میں جی دیکھوں گا۔ جی، بعد میں دیکھوں اس کی شروحات، دیکھوں کیا لکھا ہوں نے۔ کس وقت کال کروں آپ کو شیخ؟ ابھی مجھے بات ٹائم نہیں، میں بولوں۔ شام کو کروں؟ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں عبداللہ، کہاں سے؟ عبداللہ ڈسٹرکٹ ہاپوڑ، جی ڈسٹرکٹ ہاپوڑ سے۔ نام عبداللہ ہے یا فرضی نام ہے عبداللہ؟ تمہارا نام سے عمران لکھا ہوا ہے؟ ارے نام کچھ بھی لکھا آ رہا ہو، میں بتا رہا ہوں نا عبداللہ ہوں۔ ہاں ہاں، تو آپ وہاں خادم اسلام مجھے مدرسہ ہے، وہاں ارے پہنچ جاتے ہیں شیخ آپ؟ آپ بتائیں نا یار، آپ اہل حدیثوں کے خلاف اتنا بولتے ہیں، جب کوئی اہل حدیث آپ کو کال کرتا ہے آپ ادھر ادھر ارے کی میں باتیں کرتے ہیں۔ تم بحث کر رہا ہوں، بحث میں جو کہہ رہا ہوں نہیں، مجھ سے وہ نہیں سن رہے بحث تم؟ آپ نے کیا بولے؟ میں بحث کر رہا ہوں، یہ بحث کی بات ہے یہ؟ نہیں میں یہ کہنا نہیں، چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ وہاں فوری طور پر سمجھنا ہے تو نا؟ فوراً نہیں ہمارا جو سمجھنا، مجھے شیخ آپ القول شام کا فورکل ہے نا، وقت دے میری بات دیجئے۔ سن لو آپ، بات آپ سننے مجھے کا کسی شام کی؟ کا آگے شام سے میں نا، ارے چیخو چلاؤ مت، شام کا چپ وقت دے ہاں دو ایسا مجھے۔ جی بتائیں ابھی صاحب، بتائیں۔ جی میں یہ بول رہا ہوں، جی کہا تھا بھائی جب لوگوں کے اندر آمنے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کسی کو کال کر کے پریشان کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کس سے کہا کہ آمنے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ بات نہیں کر سکتے، تیار اگر کوئی تیار ہو تو چلو، ہم تو تیار ہیں، آپ اپنی جمعیت کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس پر آپ اپنے سائن وغیرہ کر کے دیں، ہم اپنے عالم دین کو دکھائیں گے، عجیب ان بات سے ہے رجوع کال، کریں گے۔ عجیب بات ہے کال کر کے تم پریشان کرتے ہو، لکھوائیں ہم، لکھوانے کی تو بھائی تمہیں ضرورت ہے نا، پہلے تم نہ نہ، لکھواؤ، ہمیں کھجلی نہیں ہے نا، کھجلی آپ کو ہو رہی ہے بھائی۔ کھجلی تو تمہیں ہے نا کال کرنے کی، ہاں تو کر دیں ہم تو کال، اب کسے ہوئی ہے کھجلی؟ اب بھی آپ کو ہی ہوئی ہے، میں نے کی کال، آپ نے کی ہے مجھے؟ کال تو تم نے کری ہے نا، پہلے مفتی عبد القادر صاحب کو، وہ تو تیار ہے آمنے سامنے بیٹھ لو آپ، ہاں تو مفتی قادر سے بھی بولا ہے کہ آپ اپنی جمعیت کا لیٹر ہیڈ جو ہے اس پر سائن کرا کے دیں، جہاں وہ کہیں گے وہاں ہم آنے کو تیار ہیں۔ اور بتائیں۔ قادر صاحب عالم ہے، سند یافتہ عالم ہے، ان ارے کے پاس بھائی وہ، میں ان کی ڈگری نہیں پوچھ رہا آپ سے، جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب اگر آپ کو یہ خواہش ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہو تو انشاءاللہ تعالی آمنے سامنے بیٹھ کر بھی بات ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے، سنیے سنیے سنیے، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی جمعیت کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس پر آپ اپنے سائن کر کے دے دیجئے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جماعت کے عالم دین سے رجوع کرتا ہوں پھر انشاءاللہ۔ جمعیت کی اگر آپ بات کریں، جمعیت کا جو ہے نا، جمعیت کوئی ایک نہیں ہے، وہ اس میں سب بھی ہے، دیوبندی بھی ہیں، سب ہیں، ارے ٹھیک بھائی ہے، جو تمہاری بجنور کی جمعیت ہے، بجنور سے ہے نا مولا وہ مفتی قادری صاحب؟ بجنور کے جتنے اہل حدیث ہوں گے، بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، سب جمعیت میں جڑ کر کام کریں گے، اگر مسلمانوں کو کوئی معاملہ ہوگا، جمعیت کی بات یہاں ہے الگ۔ مسلمانوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ مجھے ٹارگیٹ کرنے آئے ہو۔
नहीं नहीं, टारगेट नहीं करना, ट्रोल आप कर रहे हो ना भाई, परेशान तो आप कर रहे हो ना, मजबूर परेशान आप कर भाई, रहे अगर हो। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर देखो कोई हम मसला मैं आपसे, सुनिए ना, कोई मसला मैं आपसे दरियाफ्त करूं तो आपको हक है इस चीज का कि अल्लाह ने आपको सनद दी है, सनद याफ्ता आलिम बनाया, डिग्री वाला आलिम बनाया है, तो आप उम्मत की रहनुमाई करें। अब मैं कंफ्यूज था और हूँ लेकिन कि भाई रहनुमाई सुनिए सुनिए सुनिए, आपने कर- आप में दिक्कत ये रहनुमाई होती है, आप लोग पूरी बात नहीं सुनते। बुखारी आप शरीफ सुनाओ। की रिवायत है, हदीस नंबर 556। ठीक है। आपकी तरफ से एक तो ये बहुत उसकी वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, किस चीज की आवाज है, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। पता नहीं, मार्केट में हूँ मैं, दुकान में। बताओ। हाँ, हैंड फ्री से हटाइए फोन। हैंड फ्री कर रहा था मैंने, हैंड फ्री हटा हुआ ही है। अच्छा अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 556 है, उसमें ये है कि अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में नमाज को अदा करे असर की कि उसने एक रकत अदा की है और सूरज जो है वो गुरूब होने लगा है, तो उसको अच्छा चाहिए कि वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। ठीक अच्छा। है। इसी तरीके से फिर फजर की नमाज का जिक्र है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़े ऐसे वक्त में कि सिर्फ एक रकत उसने पढ़ी है और सूरज जो है वो तुलू होने लगा है, तो ठीक है। वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, यानी एक और रकत पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। ये दो हदीसें अलग 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 है या एक ही है? एक ही हदीस में है भाई साहब। ठीक है। अब ठीक है, मैंने उस उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या मसला है कि असर की नमाज हो जाएगी और फजर की नहीं होने की। उनका क्या तो जवाब आया? उन्होंने ये कहा कि फजर की नमाज नहीं होने की, असर की हो जाएगी। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये तो वो वाली बात हो गई कि आप हदीस के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हैं, कुछ पर ईमान नहीं रखते। ये सब बातें हुई आपकी कॉल पर। हाँ कॉल भाई, एक हदीस है, सुनिए, एक जो आप हदीस है, सुनिए तो भाई। आपने रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें ये सब बात नहीं है जो आप बता रहे हो। कौन सी? आधे हदीस पर ईमान रखते हो, आधे पर नहीं रखते, ये बात वो उसमें कॉल में नहीं। वो रिकॉर्डिंग। सुनिए ना, वो तो फिर बाद में जब उन्होंने बात ही नहीं की, मैं किससे करता बात। ये तो आप कह रहे हैं ना, आधे हदीस पर ईमान है, तो आधे पर अगर ईमान। मैंने ये ऑडियो जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर ये ऑडियो भी मैंने आपको दे दी तो फिर क्या होगा? भाई जो आपने ऑडियो मुझे भेजी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी बात हुई है। आप कह रहे थे कि उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, व्हाट्सएप पे जो भी हुई उन्होंने कुछ डाला मेरे पास। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पर हुई ना भाई, 2 बार उन्हें कॉल किया, दोनों बार उन्होंने काट दिया, तीसरी बार तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। समझ गए हम। बाकी आप सुनिए ना भाई, उन्हें छोड़िए, आप जवाब दे दीजिए इस चीज का कि फजर की नमाज क्यों नहीं होगी और असर की क्यों हो जाएगी। अब तो मेरा वही है जो मुफ्ती साहब ने तुम्हें दिया है, वही मैं आपको किताब का फोटो भेज के भेज दूंगा। तो उसी क्या हाथ क्या वाला जो क्या आपको क्या दिया है। जवाब क्या दिया है उन्होंने? कोई हदीस वदीस पढ़ दी मुझे, कुरान की आयत पढ़ दी कोई? तकदीर है, अहादीस को सामने रखते हुए, जो कि सूरज निकलने के बाद कोई नमाज नहीं। ठीक है। तो वो तो असर की भी नहीं है ना। वो हदीस को सामने रखते हैं, टाइम टेबल पूरी बात है उसमें। इतनी बात पूरी मुझे याद नहीं है। अच्छा बाकी एक अगर बात आपको बताओ, जब तनाज़ा होगा, मेरे भाई एक मिनट सुनिए, जब तनाज़ा होगा तो कुरान ने क्या रहनुमाई फरमाई है? तो आप करके क्यों नहीं फिर तनाज़ा जब होता है तुम्हारे हदीसों के अंदर? भाई एक एक हजार मिनट तो सुनिए ना, हम लौटाते अल्लाह रसूल की तरफ, आपका ईमान नहीं है कुरान की उस आयत पर, सूरह निसा आयत नंबर 59, फाइन उन लोगों ने तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, लेकिन आप लोगों का देखिए ईमान नहीं है। सुनिए सुनिए एक सेकंड, आप तनाज़ा लोगों इस बात पर, सुनिए ना भाई के साहब, अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब जब तुम सारी तनाज़ा इस सुनाते हो बात पर हो रहा, तो तनाज़ा इस बात पर हो रहा है कि कोई बंदा रात सुबह को सुनो सोकर उसकी भाई, आंख नहीं खुली टाइम से, उसको इस वक्त में नमाज तो के लिए सुनो। वो आया कि सिर्फ वो एक रकत उसने पढ़ी थी और सूरज जो है तुलू होने लगा। ये दो तरह की अब हदीसें आ सुनिए, गई पहले सामने। पहले बात सुनिए, दो तरह की नहीं है, एक ही हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह हदीस के रसूल तो कह रहे हैं कि नमाज हो जाएगी और आपके फुकहा कह रहे हैं, आपके आलिम कह रहे हैं नमाज नहीं होगी, तो भाई आपकी बात क्या मोतबर है, आपकी बात क्यों माने हम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, जो है तुलू के बाद मत पढ़ो। हाँ तो तो हदीस आ वही गई। वही वही अल्लाह के रसूल, तो फिर भैया असर क्यों पढ़ रहे हो?
तदबीर दी जाएगी ना उसमें, हदीस को सामने, सारी हदीस को सामने रखे वाला मैंने सिर्फ तदबीर दी सिर्फ है। सिर्फ सिर्फ आधी हदीस में तदबीक देंगे आप? आप एक मसला उठा रहे हो, हम सारे मसलों की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो मकरूह वक्त है वो फिर असर का हो या फजर का हो, हमारे नजदीक भी उसमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है, बल्कि हमारे नजदीक हराम है। पहले आप मसले को समझें। लेकिन एक बंदा है वो सोकर इस वक्त उठा के उसको एक रकत मिली और उस सूरज तुलू होने लगा, तो रसूलुल्लाह उसको फरमा रहे हैं कि ऐसे वक्त में वो बंदा अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए हम आपसे कॉल पर बात नहीं करते, तुम अपने लिए सुना रहे हो, दूसरे सुन लिए, अपने लिए सुना रहे हो। मैं तो आपसे जवाब मांग रहा हूँ कि भाई जब अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नमाज फजर भी हो जाएगी, जोहर हो जाएगी, आपको कौन इख्तियार दिया कि फजर को आप ये कह दें नहीं होगी और असर को कह दें हो जाएगी? कौन इख्तियार दिया आपको ये? जब इस तरह अपनी पूरी पूरी अपनी बात कर लोगे, आप दूसरे की नहीं चलोगे फोन पर, इसलिए हम मना करते हैं आपको बात करने के नहीं लिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, मेरी बात हो गई कंप्लीट, कहिए। जो जो दलाइल हैं, ठीक है, जो उलमाए किराम ने दिए हैं, ठीक है, वो सारे दलाइल आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे, हमने सामने इसलिए बोल रहे अरे हैं। आप अभी पेश कर दीजिए ना, आप क्यों डर रहे हैं? मैं कौन सी किताब लेकर बैठा हूँ अभी? मुझे किताब तो मैं भी लेकर नहीं बैठा, मैं तो बाजार में दुकान पर हूँ। लेकिन मैं आपसे एक मसला दरियाफ्त कर रहा हूँ कि मकरूह वक्त में हम भी नमाज के कायल नहीं है, लेकिन कोई बंदा ऐसे वक्त में आया कि उसने एक रकत पढ़ी, एक रकत उसने पढ़ी, सूरज तुलू होने लगा, वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा या उसकी नमाज फासिद हो जाएगी? आप तो कहीं कहीं के कायल नहीं है, कहीं कहीं के कायल है, आपके हजारों इख्तिलाफ है आपकी जमातों अरे में। भाई हमारे इख्तिलाफ को छोड़िए, आप पहले कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू कीजिए। हमारे इख्तिलाफ के लिए हमने अपने इख्तिलाफ हल करने के लिए हमने आपको कॉल किया है कभी कि भाई हमारे माबैन ये इख्तिलाफ हो रहे हैं? हमने जब भी इख्तिलाफ किया होगा तो वो कुरान और सुन्नत से होगा हमारा इख्तिलाफ कि भाई तुम यहाँ शरीयत को छोड़ रहे हो, यहाँ तुम शरई हुक्मों को छोड़ रहे हो, यहाँ रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़ रहे हो। तुम्हें तकरीर कर रहे हो, हमारी तो सुन नहीं आप। भाईजान मुझे आप एक बात का जवाब दे दो कि कोई बंदा, मैं जवाब तो मैं उसी जवाब की तो बात कर रहा हूँ, आप कर रहे थे, ठीक है, मैं उसी जवाब की बात कर रहा हूँ। आप आमने सामने अपना एड्रेस दो, मुकम्मल दो, हम आपसे वहाँ पहुँचकर आपसे बात करते हैं, इस्लाही बात होगी। अपनी जमीयत का आपको एक बार में एक बात समझ नहीं आती क्या? एक क्लास में 5 बार पढ़े थे? आपको कई दिन से बोला जा रहा है कि मेरे भाई आप अपनी जो बिजनौर की जमीयत है उसके लेटर हेड पर मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब ये लिख कर दें कि मैं इस मसले पर अहले हदीसों से मुनाजरा करना चाहता हूँ, मेरी जीत उलमाए देवबंद की जीत है और मेरी हार उलमाए देवबंद की हार है, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ जितने मुनाजरे होते थे जमीयत लेटर पेड पे होते हैं सारे मुनाजरे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपको शायद पता नहीं है, पहले लेटर हेड पर पहले लिखा जाता है। हमारे यहाँ मस्जिद में अहले हदीस की ईंधन गैस वो एक अलग बात है, ये तो मेरी आपकी भी बात हो रही है। आप एक बड़े लेवल पर अगर मुनाजरा करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ उसूल और शरायत हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीयत का जो लेटर हेड है उस पर आपको ये लिखवाना होगा कि भाई हम इन लोगों से मुनाजरा करना चाहते हैं। यही तो मसला है, आप अपनी अपनी करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने सामने बैठ कर बात करो। अरे तो मैं मना कर रहा हूँ यार, बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, मैंने मना किया आपसे? मैंने चलो खैर मैं इस वक्त बिजी हूँ भाई, मैंने जो कहना था कह दिया। अब इस पर थोड़ा मैं आपको ऑडियो डाल रहा हूँ पीएम में, ये रिकॉर्ड हो गया है, आप इसको 10 बार सुनकर फिर मुझे कोई इल्मी जवाब देना, एक बात को बार बार मत दोहराओ। अस्सलाम वालेकुम।